dear students. Good morning all of you. Again we are here to learn trial balance from the ledger balances. Here I am taking one question. This is prepare a trial balance from the following ledger balances of Shri Keshav Chand Gopal Chand as at 31st March 2020. As at 31st March 2020. तो बच्चों ये लेजर बैलेंसेस आपको गिवन है, ये आपको अभी मैंने हाफ ही क्वेश्चन कॉपी किया है. इससे आपको मतलब लेजर अकाउंट्स नहीं बनाने, बैलेंसेस आर गिवन टू यू बट यू हैव टू प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस. और ट्रायल बैलेंस में कुछ रूल्स मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको बताए थे. लिसन वंस मोर. ऑल असेट्स आर डेबिटेड, एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, ऑल रेवेन्यूज आर क्रेडिटेड, ऑल लायबिलिटीज एंड कैपिटल आर क्रेडिटेड. ओपनिंग स्टॉक ₹20,000. नाउ one by one we will enter the figure in trial balance. This column is for particulars. Debit amount, credit amount. Opening stock. Opening stock is ₹20,000. This will be entered in the debit side. Stock is a set. Purchases account expense है, it will again be debited. Next is purchase return. Purchase return 5,000. ये परचेजेस में से रिटर्न आ गई. अगर परचेजेस डेबिट होती है तो परचेज रिटर्न क्रेडिट होती है. सेल्स क्रेडिट होती है. रेवेन्यू है 1,60,000. नेक्स्ट इज सेल्स रिटर्न. सेल्स रिटर्न is 6,200. Sales return will be debited. Sales is credited and sales return is debited. Next is rent. Nothing is mentioned in front of the rent. In such a case we will assume that rent is an expense. तो rent को हम डेबिट में लिखेंगे. Rent account. How much is the amount of rent? ₹1,200 या 1,200. Salaries is also expense. तो salaries को हम डेबिट करेंगे 5,700 से. नेक्स्ट इज एडवर्टाइजमेंट. ₹880. Again it will be debited. It is an expense. Now commission received. This is income. तो commission received बच्चों मैं ये इरेज कर रही हूँ बोर्ड का ये वाला पार्ट. commission received income है. received word is mentioned here, so it is a revenue and hence will be credited. Next is discount. Discount के सामने credit word mentioned है, इसको भी credit करेंगे. Next is furniture. फर्नीचर को 6,000 से डेबिट करेंगे क्योंकि ये असेट है. नेक्स्ट इज मशीनरी. मशीनरी इज ऑल्सो असेट, तो असेट को डेबिट करेंगे 62,000 से. नेक्स्ट इज डेटर्स. डेटर्स आर द कस्टमर्स फ्रॉम whom we are to receive payments from in near future. They are the customers to whom goods have been sold on credit.
So debtors again are our assets. They will be entered in the debit side. Next, few more items are there which are not written on the board, but I am filling here in the trial balance with the help of book. Next item is creditors, 12,750. Creditors liabilities हैं, क्रेडिट होती है, तो इसको क्रेडिट में एंटर करेंगे 12,750. 12,750. नेक्स्ट इज बिल रिसीवेबल. ये रिसीवेबल है तो दिस इज ऑल्सो असेट, 4,600. नेक्स्ट इज बिल पेएबल. ये लाइबिलिटी होती है हमारी, जो पेएबल है, जो हमें देना है. दैट इज आवर लाइबिलिटी. बिल पेएबल इज वर्थ ₹2,500. नेक्स्ट इज कैश इन हैंड. कैश इन हैंड इज असेट. ये फिर इरेज कर रही हूँ मैं. कैश इन हैंड is asset. Same question is being continued. Cash in hand rupees 11,220 asset है ये. Next is bank overdraft. This is liability, hence it will be recorded on the credit side. Bank overdraft 10,000. Next is interest on bank overdraft. Interest on bank overdraft. ये इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, ये एक्सपेंस हो गया. ओवरड्राफ्ट इज अ टाइप ऑफ लोन. ओवरड्राफ्ट, इस इंटरेस्ट को डेबिट करेंगे 1,800. नेक्स्ट इज कैपिटल. कैपिटल इज द इंटरनल लाइबिलिटी, हेंस इट विल बी क्रेडिटेड ₹50,000. Next is drawings. Drawing will be debited 7,800. Next is input CGST. Input CGST is paid at the time of purchase of goods. Hence it is debited in the journal entry also. Here also it will be debited. Next is input SGST. Input SGST is ₹5,000. Next is output CGST. Output CGST is ₹8,000. Then output SGST, again 8,000. In the end बच्चों क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में कभी नहीं आता. It is never entered in the trial balance, and in the end, in the same line, we will sum up both the sides of trial balance. They should be equal. Here the total is 2,58,000, 2,58,400. 2,58,400 is the sum total of the trial balance of both the sides, and we will write here 2,58,400, and below it we will draw two double line. So
this is the way we prepare trial balance with the help of ledger balances. Yes students, now we will learn treatment of closing stock in trial balance. अभी मैंने आपको बताया था कि closing stock is not entered in the trial balance. क्यों enter नहीं होता? Generally closing stock does not appear in the trial balance because in most cases it is brought into accounts at the time of preparing trading account. ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है बच्चों ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस फाइंड आउट करने के लिए, उस समय क्लोजिंग स्टॉक को बुक्स में लाते हैं। तो हम क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि ट्रेडिंग बाद में बनता है, ट्रायल पहले बनता है, इसलिए क्लोजिंग स्टॉक को हम ट्रायल बैलेंस में एंटर नहीं करते। बट हाउएवर इन फॉलोइंग केसेस क्लोजिंग स्टॉक विल अपीयर इन ट्रायल बैलेंस। कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस में क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में आ सकता है। नंबर 1, इफ बिफोर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस, बनाने से पहले ही क्लोजिंग स्टॉक इज ब्रॉट इनटू अकाउंट्स। अगर ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले ही अकाउंट्स में क्लोजिंग स्टॉक दिखाया जा रहा है तो वहाँ पर हम एक एडजस्टिंग एंट्री बनाते हैं, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। ऐसे केस में क्लोजिंग स्टॉक को हम ट्रायल बैलेंस में शो करते हैं। दो और सर्कमस्टांसेस हैं बच्चों इसी की, एक है बी पार्ट इसका, इफ closing stock is if बी पार्ट है इसका, if ट्रायल बैलेंस is prepared after preparing ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद यदि आप ट्रायल बैलेंस बना रहे हो तो क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक आ चुका है, ट्रायल बैलेंस बाद में बन रहा है, इस केस में क्लोजिंग स्टॉक को आप शो कर सकते हो। और तीसरा है इफ, सी पार्ट है इसका, इफ ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड आफ्टर पासिंग एडजस्टिंग एंट्रीज। अगर आपने एडजस्टिंग एंट्रीज को पास करने के बाद ट्रायल बैलेंस बना रहे हो तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में आएगा। यदि आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस बना रहे हो तो भी आएगा क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में। और फर्स्ट मैंने ये बताया था कि अगर आपने इफ बिफोर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस क्लोजिंग स्टॉक इज ब्रॉट इनटू अकाउंट्स बाय एडजस्टिंग इट अगेंस्ट परचेजेस, उस केस में हम क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट एक एडजस्टिंग एंट्री बनाते हैं टू परचेज, उस केस में आता है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस, आप ट्राई टू रिमेंबर इट, इन मोस्ट ऑफ द केसेस द क्लोजिंग स्टॉक इज नॉट एंटर्ड इन द trial balance. I am taking one more question for practice of preparing the trial balance from the ledger balances, but in this question I am not writing the ledger balances on the board. I will speak one by one the ledger balance of each and every item and also write down on the format of the trial balance. Stock on 1st April 2019. So this is opening stock, and opening stock will be entered in the debit side, ₹2,20,000। बच्चों इसमें यूनिट टेंस के नीचे ऐसी फिगर बिल्कुल एक के नीचे एक आनी चाहिए जिससे कि यू कैन ऐड देम इजीली। परचेजेस
is worth rupees 25,75,000 डेबिट होगा। सेल्स रेवेन्यू है, क्रेडिट हो जाएगा 36,18,000। नेक्स्ट इज कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड्स ₹3,000 एक्सपेंस है ये कैरेज, गुड्स को कैरी करने में। परचेज, कैरेज इनवर्ड मीन्स कैरेज ऑन परचेज। कैरेज आउटवर्ड, carriage outwards means carriage on sales. This is also expense and hence it will be debited. Next is return inward. Return inward is sales return, and sales return is debited. How much is it? Sales return 85,000. Sales return is worth ₹85,000. Next is return outward. Return outward means purchases return outward. इसको बच्चों ऐसे याद रखना, ये हमारा बिजनेस है, हमने परचेज किए, बिजनेस में परचेज करके गुड्स इनसाइड आए, गुड्स अंदर आए बिजनेस के। जब हम परचेज रिटर्न करते हैं तो रिटर्न आउटवर्ड हो गए, यानी कि गुड्स बिजनेस से बाहर चले गए, आउटवर्ड हो गए, तो ये रिटर्न आउटवर्ड इज परचेज रिटर्न। दिस इज वर्थ ₹20,000। तो परचेजेस डेबिट होती है, परचेज रिटर्न क्रेडिट होगी। नेक्स्ट इज डेटर्स। डेटर्स असेट्स हैं, डेबिट होंगे 3,20,000 से। नेक्स्ट इज क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स 1,74,000। नेक्स्ट इज बैड डेब्ट, लॉस है हमारा, बैड डेब्ट ये डेबिट होगा, लॉस है। नेक्स्ट इज स्टेशनरी, एक्सपेंस है, स्टेशनरी एक्सपेंस है, डेबिट होगा। ये स्टेशनरी है 4,200 रुपीज़ की। नेक्स्ट इज इंश्योरेंस, ये भी एक्सपेंस है, इंश्योरेंस 3,400 डेबिट होगा इंश्योरेंस। नेक्स्ट इज वेजेस एंड सैलरी, ये भी एक्सपेंस है, वेजेस एंड सैलरीज। दिस फिगर इज 1,85,000 डेबिट करेंगे। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट, असेट होता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट इज वर्थ ₹3 लाख, ठीक, असेट है, डेबिट होगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट आइटम इज इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट डेबिट होता है और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्रेडिट होता है। इनकम है इन्वेस्टमेंट पर, हमें इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है 27,000। कैश एंड बैंक बैलेंस, कैश एंड बैंक बैलेंस, कैश एंड बैंक बैलेंस है आपका 12,400। अभी बच्चों कुछ आइटम्स और भी हैं। फिर है नेक्स्ट इज प्रीमिसेस। प्रीमिसेस का मतलब है बिल्डिंग। अभी हम एंटर करेंगे इसको। प्रीमिसेस का मतलब होता है बिल्डिंग। बिल्डिंग मतलब असेट है, तो डेबिट में लिखेंगे
प्रेमिसेस, प्रेमिसेस मतलब बिल्डिंग, प्रेमिसेस दिस इज बिल्डिंग ₹6 लाख डेबिट हो गया। नेक्स्ट इज फिक्सचर्स, जो फिक्स्ड फर्नीचर होता है दैट इज कॉल्ड फिक्सचर्स, और फिक्सचर्स इज वर्थ ₹1,40,000। असेट डेबिट होगा। मिसलेनियस एक्सपेंसेस, एक्सपेंस एंड डेबिट होंगे 5,200। नेक्स्ट इज मिसलेनियस इनकम, इनकम वर्ड लगा हुआ है इसके सामने, इनकम यानी कि रेवेन्यू क्रेडिट होगा। इनकम है हमारी 1,400। नेक्स्ट इज लोन फ्रॉम ICICI बैंक, लोन फ्रॉम ICICI बैंक, ये लाइबिलिटी है, लोन लिया है हमने 2,50,000। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन लाइबिलिटी है और इसका इंटरेस्ट जो है वो एक्सपेंस है, डेबिट होगा। इंटरेस्ट ऑन लोन 30,000 रुपीज़। अभी बच्चों थोड़े से आइटम्स और हैं, थ्री फोर आइटम्स है, बस ज़्यादा नहीं है। लेकिन इससे आपको क्लियर अंडरस्टैंड हो जाएगा कि ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है। नेक्स्ट इज कैपिटल, कैपिटल इज ₹7 लाख क्रेडिट होगा। नेक्स्ट इज ड्राइंग्स, ड्राइंग्स हमेशा डेबिट होती हैं। ड्राइंग्स ₹60,000। नेक्स्ट इज कंप्यूटर्स, असेट हो गए हमारे कंप्यूटर्स 90,000। फिर नेक्स्ट इज गुडविल, गुडविल भी असेट होता है, इंटेंजिबल असेट है विच कैन नॉट बी सीन, 1,60,000। Next is input IGST paid at the time of purchase of good. IGST is integrated goods and services tax and paid to the central government, 40,000 डेबिट होगा। आउटपुट IGST, आउटपुट IGST 50,000। बच्चों ये थे आइटम्स इसके। लास्ट में इसमें क्लोजिंग स्टॉक भी मेंशन था क्वेश्चन में, डबल लाइन करते हैं एंड में हम इसके, और फिर इसका टोटल हम सम टोटल करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक इसमें हमने एंटर नहीं किया है, 48,40,400, ये इसका सम टोटल आया है और दोनों का सेम आया है। अगर बच्चों ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता तो सर्टेनली देयर आर सम एरर्स इन द लेजर balances. In that case, suspense account is opened and the difference is put in the suspense account. Later on errors are located and suspense account is closed. Till now students, this is all about today. Now goodbye. You will be given some exercises for practice. Do those exercises and if you find some query you may ask us. Okay students, goodbye all of you.